गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस क्लास में हम लोग उन सारी चीजों को यूज करेंगे जो इससे पहले हम लोग ने 2 क्लास में पढ़ा है. ठीक है. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying straight conductor, current carrying circular loop and current carrying solenoid. Fine. Conductor, you know conductor. Straight means straight conductor like this. This is a, you can assume this is a straight conductor. So we'll start with that. Fine. Our first topic is magnetic field due to straight current carrying conductor. Right? So magnetic field, we have read magnetic field in last class. So we will know in this class that magnetic field किस किस चीज पर डिपेंड करता है और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करता है इन 3 केसेस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं. फाइन. सो विल स्टार्ट विद द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. राइट. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, assume this is a conductor which is straight and current is flowing through this wire. फाइन. कैसे करंट फ्लो कर रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ. लाइक हियर इज फ्लोइंग. फाइन. डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा. फाइन. करंट इज फ्लोइंग like this. Is it okay? Fine. So in Oersted experiment we have read, अगर हम लोग करंट बढ़ाते थे, कैसे बढ़ाते थे हम लोग? रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को घटा करके, रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को घटा करके हम लोग करंट को बढ़ाते थे तो निडल जो होता था वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करता था. हम लोगों ने पढ़ा था. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता था? बढ़ता था. क्लियर. सो हियर आल्सो मैग्नेटिक फील्ड depends on current. Magnetic field depends on current. We are dealing with straight current carrying conductor now. Fine. And in this I am telling you magnetic field depends on current flowing through the conductor. It means current को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा. करंट को अगर हम लोग घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा. कैसे चेंज करेगा? तो फॉर दैट यू हैव टू नो magnetic field which is denoted by B, capital B, which is denoted by capital B. So that magnetic field B is directly proportional to current. Is directly proportional to current. It means if you will increase current, then what will happen? Magnetic field strength will increase. Fine. And this B is inversely proportional to small r. Now what is small r? Small r is the distance. Small r is the distance. It means small r is the distance means what? If this is conductor, then a point. अगर आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, this is r. अगर आपको यहाँ निकालना है, this is r. अगर आपको और दूर निकालना है, that is r. Fine. Means distance from this conductor is taken as small r, and that is B is inversely proportional to small r. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लियर है? ये 2 चीज आप लोग को जानना है इन क्लास 10 फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस of the point from the conductor. Clear है? ये 2 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है. Now we have to draw magnetic field lines. We have to draw magnetic field lines. Magnetic field lines draw करने के लिए आपको जानना क्या है? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको लिख सकते हो, पढ़ सकते हो. फाइन. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल मीन्स ये राइट हैंड है. फाइन. You have to take this right hand and you have to hold this. You have to hold this conductor. You have to hold this conductor in such a manner so that this thumb
will show you the direction of the current. In this case, I am taking current is flowing upward because this is positive, this is negative. The current will come like this. The current going like this. Fine. So you will hold like this. Fine. You will hold this like this. Then this wrapped finger ऐसा है ना, circle. Fine. Will give you the direction of magnetic field lines. Fine. It means you can see I have drawn here. This is the line. It means this side finger is going in. Means this side means वायर के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ. फाइन. इफ यू ड्रॉ इन कॉपी विल राइट इनसाइड द इनटू द पेपर. फाइन. एंड इस साइड क्या होगा, ऐसे करके ये बाहर की तरफ आएगा. अपने हाथ से करो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. दिस इज कंडक्टर. ये ऐसा है, ये ऐसे कर्ल होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अंदर की तरफ. इधर आकर इस साइड और इधर आके पीछे की तरफ. इसका मतलब ध्यान से समझना, ये क्या बनेगा, ऐसा सर्कुलर लूप बनेगा. ऐसा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा. मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनेगा, सर्कल बनेगा. और सर्कल आप लोग जानते हो, सर्कल का मतलब मैं अगर सर्कल लूंगा आप लोगों के लिए, मान लो ये सर्कल है, ठीक है. तो अब ये वायर है, ऐसा ही बनेगा ना. ये वायर से तुम घुमाओगे तो कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा. ध्यान से समझना है. मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे डिजाइन करते हैं हम लोग, टेंजेंट. यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, इस साइड. यहाँ पे टेंजेंट किधर होगा, इस साइड. यहाँ पीछे साइड टेंजेंट किधर होगा, इस साइड. यहाँ पे टेंजेंट कैसा होगा, इस साइड. बिकॉज आपका ऐसे कर्ल हो रहा है. ध्यान से समझना है इसको. ये ऐसे कर्ल हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे टेंजेंट इस साइड, उसी डायरेक्शन में जाएंगे ना. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा है. यहाँ पे इस साइड ये पॉइंट कौन सा है, अगर आप कॉपी पे देखोगे, कॉपी पे आपका कंडक्टर ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है. अगर आप जानते हो तो आप लोग जानते होंगे ये आपका 4 डायरेक्शन होता है. फंडामेंटल डायरेक्शन कितने होते हैं, फंडामेंटल डायरेक्शन आप लोग बोलोगे सर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, इतना तो जानते हो. और 2 होता है अप एंड डाउन. तो हमारे पास 6 फंडामेंटल डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन. तो अगर आप कॉपी पे अगर आप देखना चाहो, कॉपी पे आपका कंडक्टर ऐसा है, ये आपका ऐसा होगा कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, ऐसा, राइट. अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उस साइड. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मेरी तरफ. यहाँ पे किधर होगा, ऊपर की तरफ. बट क्लास 10th में आप लोग को इतना डिटेल में नहीं जानना है. राइट. यू हैव टू नो if you have straight current carrying conductor, then magnetic field lines will be concentric circle, in the form of concentric circle. Means this will be center, this will be center, and this will be fine. इसके आगे मैं अगर और ड्रॉ करूं, इसके आगे अगर मैं और ड्रॉ करूं तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा आपको दूर बनाना पड़ेगा. क्यों दूर बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए जैसे जैसे दूर जाते जाओगे डेंसिटी क्या होता जाएगा, लाइन का घटता जाएगा. पहले ऐसे पास होगा, फिर थोड़ा सा दूर दूर होता चला जाएगा. क्लियर है. बिकॉज वी नो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे लाइन की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे ज्यादा होता है. तो लाइन के किसी भी कंडक्टर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा. ज्यादा मतलब डेंसिटी ऑफ लाइन वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो कंसेंट्रिक सर्कल आपको बनाना है, किस तरह से दूर जाता जाएगा, डेंसिटी क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा. क्लियर है ये, ठीक है. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आप लोगों को क्या क्या जानना है. नंबर वन is directly proportional to current, is inversely proportional to distance of the point from the conductor, and magnetic field lines will be always concentric circle. अब इसी जगह अगर आप लोग जानो, करंट अगर नीचे की तरफ होता तब कैसा होता, आपको फिंगर को नीचे लेना पड़ता और ऐसे कर्ल करना पड़ता. राइट हैंड से फिंगर विल ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे नीचे की तरफ जाता और ये ऐसे घूमता. राइट. तो क्या होता,
इस साइड बाहर की तरफ और इस साइड अंदर की तरफ। उस केस में क्या होता है, एरो का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्राई टू डू फ्रॉम योर हैंड। समझने की कोशिश करो कि आपका जो कर्ल फिंगर है, लेफ्ट फिंगर है, वो कैसे घूम रहा है। जिस तरह से ये घूमेगा उस तरह से आपका सर्कल बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ऐसे सर्कल बन रहा है, मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है, तो ऐसा सर्कल बनेगा। क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल है। फॉर दिस डायरेक्शन वी नीड राइट हैंड थंब रूल। फाइन। नंबर टू मीन्स, अब इसको छोड़ देते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होता है, वो ये लूप है। देखो बैटरी है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, स्विच इज क्लोज्ड, so current will flow like this, current will flow like this and current will go like this. ठीक है, so this current is in this direction, clockwise और anti clockwise। ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, बता सकते हो, सोचो। बिल्कुल सही, ये जो है क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज तो ये, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मीन्स करंट जितना बढ़ाते जाओगे, करंट जितना बढ़ाते जाओगे, ठीक है, करंट बढ़ाने का क्या तरीका है, बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्रॉम ओम्स लॉ। इसको बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा। करंट जैसे से बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। So B is directly proportional to I. What is B? B is magnetic field strength. B is what? Magnetic field strength. And is inversely proportional to R. What is R here? R is here radius of the circular loop. If radius will be more, अगर सर्कुलर लूप बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वीकर होगा। ठीक है, सो रेडियस जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ये दो चीज हो गया। ठीक है, अब हम लोग को जानना है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। बड़ा सिंपल है, दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे कर्ल करूंगा। इस जगह पे कर्ल करूंगा तो यहाँ क्या होगा, अंदर की तरफ। कोशिश करके देखो। ये अपना क्या है, सर्कुलर लूप है। ये अपना क्या है, सर्कुलर लूप है। वायर करंट ऐसे जा रहा है इसमें, ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे। यहाँ कैसे जा रहा है फिंगर मेरा, अंदर की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ अंदर की तरफ हो गया, तो यहाँ पे कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, आप देखो भी यहाँ पे नजदीक मैंने बनाया, यहाँ पे दूर बनाया है, क्योंकि इस साइड क्या होगा, वीक होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उस जैसे अगर यहाँ देखोगे तो देखो ऐसे, और फिर यहाँ पे कर्ल करोगे तो अंदर की तरफ करके देखो, ये है नीचे की तरफ और इसको अंदर की तरफ जाएगा ये। ठीक है, तो कौन सा रूल लगा रहे हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। फिर से हम लोग कौन सा रूल लगा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। ये ऐसा है तो अंदर की तरफ, ये ऐसा है तो अंदर की तरफ, मतलब इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इसमें आप लोग दिमाग में रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। दो तरह का लूप हो सकता है, दो ही तरह का लूप हो सकता है ना, एक जिसमें क्लॉकवाइज जाएगा और एक में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो इनसाइड, ठीक है, और ये आउटसाइड। क्या इनसाइड आउटसाइड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर आपका ये क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्या करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। इनसाइड का मतलब क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सर्कुलर लूप है, तो अंदर की तरफ होगा। क्या होगा, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। तो दिस नीड प्रैक्टिस, यहाँ से प्रैक्टिस करो, बुक देख के प्रैक्टिस करो, हर जगह सेम चीज दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। फाइन, ड्रॉ करने एग्जाम में आता है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है इसको। राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, जैसा इसको किए थे ठीक उसी तरह से इसको कर रहे हैं, ऐसे पकड़े और ऐसे अंदर की तरफ। यहाँ पे नीचे आ जाओ, ऐसे देख लो। ठीक है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो फिंगर थंब मेरा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और ये
अंदर जा रहा है, इधर से ये अंदर जा रहा है और इधर से ये अंदर जा रहा है। अगर इधर से ये अंदर जा रहा है तो दूसरे साइड से उभर के बाहर से कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ पे बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ बनेगा। क्लियर है ये? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऑन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो फिर से इसको एक बार रिमाइंड कर लो। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट डिपेंड्स ऑन करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट and inversely proportional to the radius of the circular loop. Inversely proportional to the radius of the circular loop. And using right hand thumb rule, we can draw the magnetic field lines. What is right hand thumb rule? What is right hand thumb rule? You have to hold the conductor such a manner so that finger, this thumb, so that this thumb will be in the direction of क्या? Current, and the right finger will give you the direction of magnetic field lines. क्लियर है? यहाँ तक सिंपल है। खुद से प्रैक्टिस करके देखो इसको, बार बार इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। नाउ नंबर थर्ड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सबसे पहले आप लोग को जानना है सोलेनॉइड होता क्या है। सबसे पहले आप लोग को जानना है क्या है सोलेनॉइड होता है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया है। राइट, बाकी सोलेनॉइड होता क्या है? एज्यूम दिस इज अ wood or this is a soft iron. If you will wound what? A wire like this in the form of helical tightly, so that diameter of that circle is less than length of this. Fine, that you have written a cylindrical coil of many tightly wound turns of insulated wire with diameter of the coil smaller than its length is called solenoid. ठीक है, ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या है? एक कास्ट आयरन है, मान लो मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने? वायर को ऐसे 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 घुमा करके, समझ में आ रहा होगा ना? ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां से देखेंगे तो तुमको क्या दिखेगा? ये डायमीटर दिखेगा। ठीक है, ये जो डायमीटर होगा ये इस लेंथ से क्या होगा? कम होगा, तो ये सोलेनॉइड कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, सोलेनॉइड सबसे पहले क्या जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड इसका किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन करंट। ठीक है, नंबर 2, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर 3, कोर ऑफ और कोर मटेरियल वी कैन राइट। ठीक है, कोर मटेरियल मीन्स किसके ऊपर ओन्ड किया गया है। ठीक है, अब करंट पे कैसे डिपेंड करता है? इफ यू विल इंक्रीज करंट देन मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, इट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करता है? इफ यू विल इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, if you will increase number of turns then also magnetic field will increase, it means number of turns is also directly proportional to magnetic field, or magnetic field is directly proportional to number of turns. This is denoted by I, this is denoted by capital N, this is denoted by capital N. Fine, so number of turns को बढ़ाने से भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा। और अगर आप कोर जो होता है जिसके ऊपर हम ओन्ड करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे एयर कोर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, सॉफ्ट आयरन कोर होगा तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज पे डिपेंड करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? ज्यादा आप लोग को समझना नहीं है इसमें, इसको डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे। आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ना है क्लास 12 में। यहाँ पे आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। एज्यूम दिस इज अ बार मैग्नेट, एज्यूम दिस इज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आप लोग क्या जानते हो?
नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इन करता है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल साउथ होगा, तो कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, तो आप लोग को ध्यान रखना है करंट कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है ना, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलना, नॉर्थ से नॉर्थ, नॉर्थ से निकलना, नॉर्थ से नॉर्थ, तो ये हो गया एन क्योंकि यहाँ से निकल रहा है, और ये हो गया साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, मैंने क्या बोला, बार मैग्नेट की तरह। तो कैसा होता है बार मैग्नेट में, साउथ से निकलता है नॉर्थ में इन करता है, साउथ से निकलता है नॉर्थ में, सॉरी नॉर्थ से निकलता है साउथ में इन करता है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से निकलता है नॉर्थ में इन करता है, राइट। तो देखो ये ऐसा होगा, नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इन करेगा, 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 निकलेगा मतलब ऐसा ऐसा डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इनसाइड कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड कैसा होगा, साउथ से, ध्यान रखना टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इस तरह का इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा, सेम एज द बार मैग्नेट, सेम एज द बार मैग्नेट। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होगा अंदर, क्योंकि बार मैग्नेट में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और नियर द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर, क्लियर है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, ऑल थ्री आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑल थ्री आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इन स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, रिकैप कर लो जल्दी से, स्टेट कैरिंग conductor magnetic field is directly proportional to current and inversely proportional to distance of the point from the conductor. Fine. And to find the magnetic field lines we will use right hand thumb rule. What is right hand thumb rule? You know. Fine. Now current carrying circular loop, इसमें क्या होता है, it also depends on the current, it also depends on the current, and how it depends, is directly proportional to current and inversely proportional to radius of the circular loop. Fine. Again this pattern you can draw using right hand thumb rule, or in shortcut I said only two things is possible. Number one, either current will be in clockwise direction or current will be in anti-clockwise direction. If current is clockwise direction, then inside क्या होगा, अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा. यहाँ अगर अंदर की तरफ होगा तो बाहर से क्या आएगा, ऊपर की तरफ, जैसा ये आ रहा है अंदर के से बाहर आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और कोर का जो मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करता है. करंट बढ़ाने से बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक बार मैग्नेट, इट विल start from north and ends on south outside the solenoid, and inside the solenoid it will start from south and ends on north. It will form a closed loop. Everywhere you can see it's forming closed loop. Clear? So these are the three things which is very very important, very very important. Fine. एक से दो क्वेश्चन शॉर्ट है जो बोर्ड में आता है. We'll do question answer also based on all these topics. First, go through this and try to understand each point. इन वीडियोस को क्लास की तरह से देखना है, ना कि जैसे गाना और मूवी के वीडियो को देखते हैं, है ना. ध्यान से समझना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक चीज को लिखना भी है. ओके, चलो, थैंक यू.